So till now we have been talking about equations of one variable only. Now we'll go for two variable equations where uh, the first or introductory equation that we have written here or in the previous class was 2x plus 5. So before we go ahead with this, let's try to recap the coordinate geometry in order to understand the relationship between um, algebra and geometry. So this particular space, two-dimensional space, has been divided into four quadrant. ये first, ये second, ये third, और ये fourth. These are the four quadrants. And the two perpendicular lines, one is called x-axis, which is parallel or horizontal to earth, or this is called also horizontal line. And y is vertical line, and it will start from point 0 0. That means at this point x coordinate and y coordinates both are 0. If we'll move to the right of this point, you will get x coordinate as positive. If we'll move left to this point, all the x coordinates will be negative. If we'll move above this point or above the horizontal line, all the y coordinates will be positive, और इसी तरह से similarly ये. तो ये एक basic और introductory coordinate plane है. So if you'd like to draw this on this plane, तो जैसे मान लो कि जैसे last class में हमने बोला था कि there will be a value of y for every x. तो जैसे मान लो कि x को हमने 0 रखा, तो y became 5. Let me write it in tabular form. ये थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं बिकॉज एवरीबडी नोज दैट हमें बेसिकली ये देखना है कि ये कैसा दिखता है ऑन द ग्राफ. और व्हेन वी से कि सॉल्व दिस, द लिटरल मीनिंग इज find all the values of x and y together, है ना. दिस इज इन ऑर्डर्ड फॉर्मेट, है ना. ये याद रखना, ये ऑर्डर्ड है. So there is one y for every x. So if we'll keep x 0, y will be 5. If we'll keep x 1, y will be 7. ये हमने last class में भी कर रहे थे. So what you'll see here is that if x is 0, y value is 5. Let's say this is the point. If x is 1, y value is 7. Let's say this point. So we'll call this point 1 7, you know, axis. And similarly, if we'll keep on drawing all the points, so it will lie on a straight line. So basically this entire straight line will be called y is equal to 2x plus 5. This means this entire straight line is the solution, or all the points of this straight line is the solution. और इसका क्या मतलब हुआ कि infinite solution will be there. ठीक है. तो दो चीजें हैं आपको समझने के लिए कि एक तो आप सारे सॉल्यूशंस को टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो इनफाइनाइट, और इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ, तो you can say that this is the line. Take any point on this line, whatever xy of that point is, it will satisfy this equation. ठीक है, यहां समझ में आया. इस चीज को मैंने थोड़ा फास्ट करके वो किया, कवर किया, बट आई थिंक एवरीबॉडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. यस हरी, बताओ. हाँ जी सर, नोटेड.
एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें ये है कि व्हाट इफ देर आर टू सच इक्वेशंस, है ना, व्हाट इफ देर आर टू सच इक्वेशंस लाइक is equal to 12 and 3x minus 4y is equal to 24. So if there are two such equations, two variable first order, ठीक है, टू वेरिएबल फर्स्ट ऑर्डर, अगर दो ऐसे इक्वेशन है तो वी कॉल इट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करो, है ना, नॉट एग्जैक्टली फॉर दीज टू इक्वेशंस, जैसे अगर दो लाइन है ना, यू नो दैट ईच ऑफ दीज equations are ultimately a straight line. So if there are two straight lines, so they can either be like this, I mean they may be parallel to each other, ठीक है, तो or they can either intersect, and if they are not parallel, they may either intersect. So that means this is the point which actually satisfies both the lines. So for the parallel case, we call that there is no solution for this two line, matlab system of equation. At this case, we call it unique solution. Matlab, that means there is one point which satisfied both the line. And there may be a case where both the lines are coincide on each other. You know, both the lines are here. So in this case, we'll call it infinite solution. Then the problem is that how to identify that if they are parallel or if they are coinciding on each other. तो इसको और इसको आइडेंटिफाई करना है आपको, है ना, rest any set will ultimately give you one unique solution, ठीक है, and you know how to solve it. तो इसमें एक चीज आपको समझने वाली बात ये है कि a straight line is identified with two component. One is called slope, other one is called intercept. So how do we write it? Y is equal to mx plus c. This is the general equation of a straight line on a coordinate plane. So if two equation has, I'll give you an example. जैसे पिछला हमारा था कि y is equal to 2x plus 5, ये हमने रखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि with every x y will go up by 2, है ना। तो तुमने क्या देखा कि जैसे x 0 पे हमारा 5 था एंड दिस वाज माय इंटरसेप्ट, ठीक है, x 0 पे 5 था, दिस वाज माय इंटरसेप्ट, and 2 by 1, this is not 2 just, this is 2 by 1, matlab we will visualize it as like this, y is equal to 2 by 1 x plus 5. That means with every x there will be 2 increment of 2 in y. तो हमने इसको देखा था क्या कि जैसे अगर हम x में 1 बढ़ते हैं, इफ विल गो 1 इन x, तो y क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पहले 5 था, फिर वो 7 हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर नेक्स्ट पॉइंट।
तो इसी चीज को हम लोग स्लोप बोलते हैं कि व्हाट इज द चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आई मीन चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वाई is your slope. Rate of change in y is slope. अच्छा, किसी को इससे भी कम आता हो, मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस, है ना, आप हमारे चैनल पे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। या अलजेब्रा में भी फर्स्ट ऑर्डर के वीडियोस वगैरह अलग से बने होंगे, तो वो लेक्चर देख लेना तो दोबारा से, तो यू विल फाइंड it easy to comprehend. But till now what we have established is कि a line is identified with two things, one is slope and other one is intercept. So if we'll check two parallel lines, like if we'll see how two parallel lines are behaving. So if these two are parallel lines, so what do you see? For both of them slope is same because they are growing up with the same rate. But for both of them, C is different. So if I'm writing a straight line equation as 2x plus 3y is equal to 12. So I can write it as like y is equal to minus 2 by 3x plus 12. So when you write an equation in this format, है ना, तो ये algebraic format हो गया, basically ये algebra में हम ऐसे prefer करते हैं, और this is your coordinate के respect में. So if you are representing this, मतलब here you are representing, we are representing the same line in this format. तो कोई तुम्हें बता सकता है इसमें स्लोप क्या है? तुम में से कोई बताओ मुझे. What is m here? We can see minus 2 by 3. And what does this donate? And if you want to speak in words, what will you say? क्या बोलोगे बताओ? अगर वर्ड्स में मैं बोलना हो तो व्हाट विल बी से? बोलो. will will in words we will say with the increase in 3 increase in x, y will get down, or the decrease in y will be 2 or minus 2, the y will decrease by 2. तो अगर आप इस इक्वेशन, मतलब जब आप इसको ड्रॉ करने जाओगे, when you go to draw, तो ये कैसा दिखेगा देखो वैसे, कि पहले तो y 12 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, दिस इज y इंटरसेप्ट, लेट्स से दिस इज 12, ठीक है. एंड इफ यू वांट टू राइट इट इन नंबर्स लाइक दिस, तो अब अगर x में इफ यू आर इंक्रीजिंग 3, तो y जो होगा वो 2 से ड्रॉप करेगा, मतलब y will come here at 10, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे होगा, विच इज 310, ठीक है. एंड सो ऑन इफ विल कीप ऑन गोइंग अहेड, ठीक है. एट व्हाट पॉइंट y विल ड्रॉप टू 0? बताओ कितनी बार में? 6 बार में होगा, क्योंकि फॉर एवरी 3 इंक्रीज इन x देयर इज अ ड्रॉप ऑफ 2 इन y, तो 12 के लिए हमें 6 बार करना पड़ेगा, तो इट विल रीच टिल 18. इफ विल रीच एट द पॉइंट 18, है ना, द
y will drop to 0. So this is your straight line which you can visualize. 2x plus 3y is equal to 12. This straight line you can visualize or you can draw it like this. So there are two things that you have to take care here, that like if both the coefficient of x and y are positive, like this equation or any such equation like 4x plus 5y is equal to 10, all these lines are downward with matlab in movement towards positive x, y will get down, है ना. सो ये ऐसे लाइंस आपको दिखेंगे. और अगर इनके साइंस डिफरेंट है तो इट विल बी एन अपवर्ड लाइन. ठीक है. तो हालांकि अभी हमारा कंसर्न ये था कि सिर्फ ये बता पाना कि क्या व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल एंड व्हेन द टू लाइंस आर coinciding each on each other. तो जैसे मान लो मैंने ये लिखा 2x minus 3y is equal to 8 and 2x minus 3y is equal to 5 और 4x minus 6y is equal to 25. So what do you see on in all these three lines? If you'll rewrite in terms of y is equal to mx plus c, आपको क्या मिलेगा बताओ. m जो होगा इन ईच केस m की वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी बताओ. कोई सॉल्व करके बताओ भाई. कोई no. 2/3. Yes, in each case you will get different, well, same slope and different intercept. इसका मतलब क्या हुआ कि all these three lines will never intersect each other. For any two lines, अगर जैसे मान लो हम किसी भी दो के लिए हम बात कर रहे हैं, for any two or even for these three lines, there will not be any solution. No solution exist. नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ कि नो एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बोथ. ठीक है. मतलब नो एक्स एंड वाई एग्जिस्ट विच सेटिस्फाइज बोथ द लाइंस. अब इसी में अगर मान लो कि हमने ऐसा लिख देते कि जैसे मान लो 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 16. So for both of these lines, m is equal to again 2/3, but c is also constant. c is 8, है ना. तो basically what is happening here, both the lines are, the equation for both the lines are same. That means both the line will coincide. So the solution for both the equation together will be infinite. क्योंकि अब हालांकि तुम बोल सकते हो सर एक ही लाइन है, लेकिन अगर दो अलग अलग दिया हुआ है तो लाइन 1 एंड लाइन 2 will be same line. So all the points of these line will be solution for this set of equation. ठीक है. तो ये हमें कवर करना था फॉर सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर टू वेरिएबल्स. ठीक है. तो एक चीज और याद रखनी है कि सिर्फ तीन ही केस होते हैं. आइदर इट विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस होगा, और यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होगा,
और नो सॉल्यूशन वाला केस होगा। एंड नाउ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल दीज थ्री केसेस। ठीक है, तो अब हम आते हैं इन इक्वेशन पे। ठीक है, विच इज द critical part here. So let's say there was an equation which was called y is equal to 2x plus 5। ये हमने शुरू से लेकर चला है, इसी इक्वेशन को हम लोग शुरू से एज अ रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन ले रहे हैं फॉर टू वेरिएबल से फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इफ आई ड्रॉ दिस, है ना, आई विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ लाइन, and this line actually represents y is equal to 2x plus 5। तो अब दो चीजें हैं। अब इससे जो इनइक्वेशन बनेगी, इट विल बी आइदर लाइक y ग्रेटर देन 2x प्लस 5, और इसका अल्टरनेट आप ऐसे लिख सकते हो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 5, और y लेस देन 2x प्लस 5, और y लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये चार तरीके हैं टू क्रिएट एन इनइक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो अब अगर आपसे पूछा, और मैंने क्या बताया तुम्हें कि इनइक्वेशंस आर आल्सो अ क्वेश्चन विच इज बेसिकली आस्किंग कि कौन से एक्स वाई जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, या इसको करेंगे, या इसको करेंगे, या इसको करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ग्राफ की मदद से लेट अस ट्राई टू solve this through graph, not through algebra। ये मेरी लाइन थी, ठीक है, दिस वाज माय लाइन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू y, और जैसे भी आप इसको लिख लो। तो मैं क्या करूंगा कि आई विल टेक एनी लाइन, एनी पॉइंट बिलो दिस लाइन, जैसे मान लो कि 0 0 है, एंड लेट मी पुट 0 0 इन दिस इक्वेशन। तो मैं क्या देख रहा हूं कि 0 2 इंटू 0 प्लस 5। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है हमारा, ये वाला आ रहा है, बड़ा वाला। अगर एक पॉइंट के लिए, है ना, एक पॉइंट के लिए इफ दिस साइन एग्जिस्ट, यानी कि इस लाइन के नीचे जो भी लाइंस है, इस लाइन के नीचे जो भी लाइंस है, सॉरी जो भी पॉइंट्स है, दे विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वेशन। ये समझ में आया सबको? बताओ दिवेश। हाँ सर, आ गया। इट्स वेरी सिंपल, है ना। सिमिलरली अगर आपको इस लाइन के नीचे ये सारे हैं, तो इस लाइन के ऊपर में जो सारे होंगे ये उसके अल्टरनेट को सेटिस्फाई करेंगे, विच इज y ग्रेटर देन 2x प्लस 5। ठीक है, अब ये जो होता है ना, जैसे मान लो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है कि अगर आप इक्वलिटी के साथ चल रहे हो, तो जैसे मान लो कि इफ आर नॉट representing, or if you are representing in equation without equality, जैसे y लेस देन 2x प्लस 5, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि लाइन को जो है, आई विल ड्रॉ द लाइन विथ डॉट्स, और उसके बाद ये सारा ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ऑल दीज पॉइंट्स आर y लेस देन 2x प्लस 5। और अगर इक्वलिटी को लेके चलना हो, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम इक्वलिटी को लेके चलाना चाहते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 5, ये बताना चाहते हैं, इस केस में मैं लाइन को जो है डार्क रखूंगा, एंड आई जस्ट मार्क ऑल द स्पेसेस अबव दिस लाइन। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 5 ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा इन इक्वेशन हुआ
two variable first order for both. ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, इतने ही कंसेप्ट्स पे सारे क्वेश्चन बनते हैं. एंड इफ यू चेक एनी, मतलब इवन कैट के भी जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, सब इसी तरह के होते हैं. Sir, may I interrupt you, sir? Yes, you can. Sir, y greater than or equal to 2x plus 5 and y less than or equal to 2x plus 5, where does it come in the pie in the graph, sir? I didn't get you. Tell, ask me again. Sir, the earlier figure that I understood, y greater and y less than, I understood. But here in this corner, right corner, there's y greater than or equal to 2x plus 5. And there's upside and below. So I couldn't understand this one, sir. This one? No, further right, sir. Further right, sir. This, ये वाला? Yes, sir. Hey, what I was telling you, that if y greater than equal to 2x plus 5, that means we have to keep the equation of line also. This also has, matlab, this thing also has 2x plus 5. This means this line will also be the part of solution. Okay. So all the points on this line or above this line will be solution of this inequation. Okay, sir. And y less than or equal to 2x plus 5, where does it come, sir? So if we want to write y less than and equal to 2x plus 5, let's say this is 2x plus 5, y less than or equal to. So in this case, then the line you will draw, it will be bold. That means all the points of the line will also be the part of this solution. Okay, sir. So, okay, sir. This is how you draw this inequation. Okay, thank you, sir. Okay. So if you start doing question, you'll find that just drawing the lines or how to draw the line will actually help you in solving many questions. Okay, sir. So since you know how to draw a function, if you all should also know how to draw some basic algebraic fraction, which we don't study in algebra. Like for maths part, you might not be studying y is equal to 1 by x, but you may be asked in interview, or there may be some question based on the graph of this function also. So if someone asks you to draw this, can you draw this on a graph paper? How to draw this on a graph paper? So if someone asks you to draw any function on a graph, you just have to do these things. You have to make a table for x and y, and you need to write different values of x. Like if you write x is equal to 0, it will be not defined. If you write x is equal to 1 by 2, it will be 2. 1 by 10, it will be 10. That means all the value near to 0 will have higher value, will give you higher value of y. If you'll write x is equal to 1, y will be 1. If you write x is equal to 2, y will be 1 by 2. So all these positive values are there. So ultimately what you can see here is the line, the graph will be like this. This is the value at 1, 1. Or it will come down as this, and then it will go like this. And similarly for negative values, if x is negative, y will also be negative. All these values at x will act as
negative values also. So here also, how this is your -1 -1, and this is how you get. So these two together will represent y is equal to 1 by x. ठीक है, ये आया समझ में तुम लोग को? दिवेश, हाँ सर। हरी बताओ। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि y इज इक्वल टू, लेट्स से y इज इक्वल टू 2 to the power x, इसका ग्राफ क्या होगा बताओ? कैन एनीवन ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन? पीएचडी में जो भी अप्लाई कर रहा है, जैसे हरी या फिर इधर जीवेस में ऑल्सो अप्लाई, यस तो नहीं कर रहा है, बट पीएचडी में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। अगर आप कोई भी ऐसी स्ट्रीम जैसे मार्केटिंग है या फिर फिनांस है या फिर पब्लिक पॉलिसी है या फिर इकोनॉमिक्स है, ऐसे सब स्ट्रीम में करते हो, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। बताओ y इज इक्वल टू 2x, 2 पावर x, इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसमें भी यही है, जैसे मान लो कि सर नेगेटिव वाले को टच करते हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट से पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। निगेटिव वाले को टच करते हुए, मतलब सर जो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के नेगेटिव को टच करते हुए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब जो पैराबोला की तरह होगा, बट वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। नहीं, जैसे इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x अगर निगेटिव भी हो तो y क्या होगा? वाई पॉजिटिव ही होगा सर। y पॉजिटिव ही होगा। तो पहले तो हम x को पहले, जैसे मान लो x को 0 रखें तो y क्या होगा? 1। 1। तो x को 0 रखेंगे तो y 1 होगा, ठीक है। तो दिस सर विल, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको सर। क्या कह रहे हो? रिकॉर्ड कर रहे हैं सर हम इस क्लास को। हाँ हाँ, कर तो रही है। तो एग्जैक्टली सर, थोड़ा ना यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है इसीलिए। ठीक है, तो x को 0 रखेंगे तो y हमारा, मतलब 2 पावर 0 इज 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया x 0 y 1। अब x को छोटी वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लो कि x को 1 रखेंगे तो y 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, x को अगर हम 1 रखते हैं तो y जो है वो 2 हो जाएगा। और जैसे जैसे x को 2 रखेंगे, x को 3 रखेंगे, तो ये तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो और x को अगर हम क्या रखते हैं, मान लो कि x को रखें 1/2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो। 2√2 हो गया ना बेसिकली, y इज इक्वल टू √2, विच इज 1.414, यानी 1 से थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो कोई x की ऐसी वैल्यू है जिसमें, मतलब पॉजिटिव x की वैल्यू जिसमें y जो है 1 से छोटा हो जाए? जैसे अगर हम y इज इक्वल टू 2 to the power 1/100 भी रखते हैं, तब भी ये 1 से बड़ा ही होगा, मतलब दिस विल ग्रो ऐसे, यही कह रहा हूं ना। इट्स नॉट पैराबोलिक, इट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। समझ रहे हो तुम? हेलो हरी, एंड इट बेसिकली गोज लाइक दिस, है ना, इट गोज वेरी फास्ट। सो दिस इज नॉट पैराबोलिक, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल,
ठीक है। और अगर फिर हम x को नेगेटिव लें, जैसे -1 लें, तो y एंड x, अगर हम x को -1 लें तो हमारा y क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है। और x को अगर हम -10 लें तो y क्या हो जाएगा, 1/1024। तो बेसिकली ये कैसे जा रहा है बताओ। और x को अगर हम इन्फिनिटी भी ले लें, जैसे अगर हम x को इन्फिनिटी भी ले लें तो y इज इक्वल टू, माइनस में, सॉरी माइनस में इन्फिनिटी भी ले लें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर, सॉरी 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी, एंड विच विल बी वेरी क्लोज टू 0। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये ऐसे आके ऐसे मिलेगा इस पे, इफ यू वांट टू ड्रॉ फॉर नेगेटिव x। ठीक है। सो दिस इज हाउ the graph of y is equal to 2 to the power x will be drawn. Similarly, all this will be in homework for you. अगर तुम लोग करना चाहो तो y is equal to log x, इसका ग्राफ कैसा होगा, y is equal to x square, इसका ग्राफ कैसा होगा। Although this x square वाले सारे हम लोग पढ़ेंगे in next class। y is equal to 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कैसा होगा। तो ये सब चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आई थिंक, मतलब मुझे लगता है कि क्वाड्रेटिक के लिए आई विल हैव टू गिव अ सेपरेट क्लास, है ना। अभी इसमें इंट्रोड्यूस करना विल नॉट बी अ ग्रेट आइडिया, दो आई विल इंट्रोड्यूस द topic here, like that we were trying to put or learn algebra as in function at y is equal to 2x square plus 5x plus 6. This is a second order function, और इसका बेसिक स्टार्ट होता है कि इफ यू जस्ट राइट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है, मान लो कभी, तो हाउ डू वी सी दिस। तो जैसे अगर आपको ग्राफ पे देखना हो तो हाउ विल यू फाइंड दिस ग्राफ, आप फिर से एक टेबल बना लोगे एंड यू विल रियलाइज दैट for two values of x there is one unique y, like for x is 0, y is 0, x minus 1, y 1, x1, y1, x2, y4, x minus 2, y again is 4. So y is always positive irrespective of the sign of x, but value grows with the value of x. So what we see here is that y is growing like this. This particular curve is normal parabolic curve for y is equal to x square. तो हम सारी क्वाड्रेटिक जो है ना इसके अराउंड बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो ऑल्दो मतलब जैसे तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हाउ टू सॉल्व इट, है ना। तो इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत बेसिक हो गया, बट अंडरस्टैंडिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम लोग इसको कर ही रहे हैं तो बस एक छोटी सी और क्लास लगेगी आप लोगों को, नॉट छोटी सी, मतलब एक क्लास और होगी जिसमें विल कंप्लीट दिस।